Hello students, welcome back. Let's continue with the second chapter, that is the biological classification. Dear students, in my previous video I told you about kingdom Monera, in which all the unicellular prokaryotic organisms, they were grouped together. Today I will start kingdom Protista, and in kingdom Protista all the unicellular eukaryotic organisms, they are grouped together. Now what is the structure of a typical eukaryotic cell? So this is the structure of a typical eukaryotic cell. In the diagram we can see that in a eukaryote true nucleus is present. A true nucleus is that which is having nuclear membrane, which is having nucleoplasm and nucleolus. When all of these structures they are present, then it is known as true nucleus. So true nucleus, U means new and karyon means nucleus. So the name itself depicts that true nucleus that is present in a typical eukaryotic cell. And we can also see in the diagram all the cell organelles they are present, like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes. So all of these cell organelles they are present in a typical eukaryotic cell. The ribosomes which are present in a eukaryote, they are of 80S, whereas in prokaryotes they were of 70S. So let us compare a prokaryotic cell with a eukaryotic cell. In a prokaryote, true nucleus was absent and it was having nucleoid, whereas in a eukaryote true nucleus is present. In a prokaryote, circular and naked DNA is present, whereas in eukaryote linear DNA complexed with histones. Histones they are present. So in a prokaryote the DNA is circular and it is naked. Naked means without histones. Histones actually बच्चों basic proteins होती हैं जो DNA की packing में help करती हैं. Because इनके अंदर जो DNA है that is directly present in the cytoplasm, that is not present within the nucleus, तो इनको packing की जरूरत नहीं होती है. Therefore in them histones they are absent. Whereas in a eukaryote, as the DNA is present within a small size nucleus, तो उनको packing की जरूरत है, DNA needs packing, तो यहाँ पे histones present हैं. So हमने लिखा है linear DNA complexed with histones. In a prokaryote, ribosomes कैसे हैं? 70S. Whereas in eukaryote it is 80S. यहाँ पे cell organelles जो हैं, they are absent. And here the cell organelles they are present. और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर जो फ्लैजिला है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट उनमें 9+2 पैटर्न जो है दैट इज एब्सेंट एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन, whereas in eukaryote इनमें 9+2 पैटर्न जो है फ्लैजिला का प्रेजेंट है और इनमें जो फ्लैजिला है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन टुबुलिन. So in case of prokaryotes 9+2 pattern जो structure होती है flagella की जो हम आगे करेंगे that is absent and the flagella is made up of flagellin protein, whereas in a eukaryote 9+2 pattern present है और जो flagella है that is made up of tubulin protein. So in kingdom Protista all the unicellular eukaryotic organisms they are grouped together and they are photosynthetic or autotrophic as well as heterotrophic in their mode of nutrition. ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक है, ये लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफिक में दे आर होलोजोइक. होलोजोइक मीन्स ये माउथ के थ्रू फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं. ये सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर पैरासिटिक ऑल्सो. कुछ फॉर्म्स हम देखेंगे कि पैरासाइट्स हैं, वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन दी होस्ट फॉर देयर एंटायर मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
और अगर अब हम इनमें मूवमेंट या लोकोमोशन की बात करें तो इनमें सीलिया भी प्रेजेंट है, लाइक इसमें मेंबर आते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशिया के अंदर हमें पता है दे हैव सीलिया फॉर द लोकोमोशन। इनमें सूडोपोडिया है, वी नो दैट सूडोपोडिया इज प्रेजेंट इन अमीबा, सो अमीबा इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा एंड दे ऑल्सो हैव फ्लैजिला। सो इनमें जो लोकोमोशन है दैट इज टेकिंग प्लेस by cilia, by flagella and by pseudopodia, and they are autotrophic as well as they are heterotrophic in their mode of nutrition. Let us study kingdom protista in detail form with the help of this small video clip. So students, let us start the kingdom protista. Kingdom protista includes all the unicellular eukaryotic organisms which are either autotrophic or heterotrophic in their mode of nutrition. And they have a well-defined nucleus and all the membrane-bound organelles in their cytoplasm, and they are reproducing both by asexual and sexual means. Now this protista is divided into three categories. First, animal-like protist, second, plant-like protist, and third is fungus-like protist. First, we will discuss plant-like protist. Plant-like protist, they are also known by the name phytoplanktons. So they are the microscopic plants which are found in the water bodies, like in fresh water as well as in the marine water, and they are the major producers. हम ये कंसिडर करते हैं भी शायद लैंड प्लांट्स जो हैं दे आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स, बट एक्चुअली दीज फाइटोप्लैंक्टन्स विच आर फाउंड इन दी वाटर बॉडीज दे आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स. Now this plant like protist is divided into three groups. The first group is dinoflagellates. The dinoflagellates, they have two flagella for its locomotion. They are cellular और इनकी जो सेल वॉल है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस प्लेट्स, वो इन प्लेट्स के फॉर्म में है जो कि इन्हें आर्मर्ड अपीयरेंस देती है. जैसे सोल्जर्स जो हैं उन्होंने आर्मर्ड डाले होते हैं, कवच डाले होते हैं सो एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, इसी तरीके से इनकी सेल वॉल जो है दैट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स टू गिव देम आर्मर्ड अपीयरेंस. इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं और ये स्पिनिंग मूवमेंट जो है वो शो करते हैं. They also glow in the dark because of the presence of colorful pigments in their cytoplasm, and they causes red tides. So let us have a look to some of these dinoflagellates. So these are the pictures of dinoflagellates like Goniolox, Gymnodinium, etc. तो इनकी हम अपीयरेंस देखें तो इनकी जो सेल वॉल है देखो आर्मर्ड अपीयरेंस नज़र आ रही है. सेल वॉल जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज बट द अपीयरेंस इज़ आर्मर्ड. एंड इनमें दो जो है ग्रूव्स प्रेजेंट हैं. वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव एंड अदर इज़ द ट्रांसवर्स ग्रूव. The longitudinal groove is called sulcus and the transverse groove is known as girdle. And the two flagella, they are present in these girdle and the sulcus, the two grooves, and they show spinning movement. इस तरीके से ये गोल गोल घूम के they are showing what? Spinning movement. Now dinoflagellates जो हैं they also have very colorful pigments in their cytoplasm which give colors to the tides, और यही रीज़न है रेड टाइड्स का. रेड टाइड्स जो है दैट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ गोन्यूलॉक्स, जिसमें रेड कलर का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है उसके साइटोप्लाज्म में, जो कि टाइड्स को रेड अपीयरेंस देता है. इवन जो गोन्यूलॉक्स है ये एमिट करता है लाइट, इट इज़ फ्लोरेसेंट, फॉस्फोरेसेंट भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, एंड इट एमिट्स लाइट इन द डार्क जो कि ग्लोई अपीयरेंस देता है टाइड्स को इन दी नाइट टाइम. एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं दे ऑल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिन्स जो कि इवन मेरीन जो एनिमल्स हैं और फिशेस हैं उनको
किल भी कर सकता है। एंड दिस टॉक्सिन जो है इफ़ इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, अगर हम इसको इनटेक कर लें तो हमारे अंदर पैरालिसिस जो है हो सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो बी फेटल टू अस। सो नेक्स्ट ग्रुप है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में इंक्लूडेड हैं डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। ये जो डाई एटम्स है इनकी सेल वॉल जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल एज इट इज़ हैविंग सिलिका डिपॉजिट्स। और इसकी जो सेल वॉल है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टू हाफ्स, जैसे सोप बॉक्स होता है विद अ लोअर हाफ एंड अ अपर हाफ। The lower half is known as hypotheca and the upper half is known as epitheca. सो इनकी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ सिलिका के डिपॉजिट्स हैं, एंड इट द सेल वॉल दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टू हाफ्स, hypotheca and epitheca. They don't have any flagella and they float over the surface of the water and they show movement by mucilage propulsion. ये म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं जो कि इनकी बॉडी को आगे की तरफ प्रोपेल करता है, एंड इस तरीके से ये क्या शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। एज जो डाई एटम्स हैं इनकी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ सिलिका प्रेजेंट हैं, तो सिलिका जो है बच्चों दैट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जितने भी डाई एटम्स हैं जो कि प्रेजेंट थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो और जिनकी डेथ हुई जा रही है, दे ऑल आर कलेक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़। और उनमें जो सिलिका है वो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर अबव वो एक फॉसिलाइज्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया है, एंड दिस फॉसिलाइज्ड मटेरियल इज़ नोन एज डाइटामेशियस अर्थ। और ये डाइटामेशियस अर्थ जो है इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है। सो डाइटामेशियस अर्थ जो है वो एक्चुअली सेल वॉल डिपॉजिट्स है डाई एटम्स के हैविंग सिलिका, एंड इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट, कार पॉलिशेस और रिफ्लेक्टिव पेंट्स जो होते हैं जो शाइन करते हैं इन द डार्क, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ द थर्ड ग्रुप जो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का दैट इज़ यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो है इसमें यूग्लिना आता है, और यूग्लिना जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज इसमें कई कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट लाइक हैं और कई कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल लाइक है। यूग्लिना में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, और इसमें एक इलास्टिक जो है पेलिकल प्रेजेंट होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देती है इनकी बॉडी को, एंड दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड, बट इफ़ दे डोंट गेट लाइट देन इनमें माउथ भी प्रेजेंट है और ये माउथ के थ्रू फूड इंजेस्ट करते हैं। सो हम कह सकते हैं दैट दे आर मिक्सोट्रॉफिक in their mode of nutrition. So they are having both the modes, autotrophic as well as heterotrophic. इनमें फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है which helps in their locomotion. They have chloroplast and they have eye spot जो कि एक फोटो रिसेप्टर है जो कि यूग्लिना को हेल्प करता है टू मूव टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. So this is the picture of a euglena. Euglena is also having two flagella, one longer flagella and one shorter flagella. जो shorter flagella है that is present in their pharynx part and it doesn't comes out. Only the longer flagella it comes out through the cytopharynx. So euglena is a connecting link between plant and animal because it is having many plant-like characters and also many animal-like characters. Now the next is fungus-like protist. Fungus-like protist, they are heterotrophic in their mode of nutrition. They have cell walls, but at some stage of their life the cell wall is absent और वहाँ पे ये एक slimy mass है of protoplasm with many nuclei present in their protoplasm, and this body is also known as plasmodium.
क्योंकि दे आर स्लाइमी इन टच, स्लिपरी मास की तरह इनकी बॉडी होती है, सो दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम स्लाइम मोल्ड्स एंड दे आर शोइंग रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. These slime molds, they are showing reproduction by producing spores, और at first vegetative फेज़ में इनकी जो अपीयरेंस है वो एमीबा लाइक होती है, और बाद में इनकी अपीयरेंस जो है वो मोल्ड्स लाइक हो जाती है, जैसे फंगस लाइक अपीयरेंस इसकी हो जाती है, जैसे मोल्ड्स जो हैं दे ग्रो ऑन दी सरफेस ऑफ द ब्रेड, यू मस्ट हैव सीन देम, तो वैसे इनकी अपीयरेंस हो जाती है. एंड दे आर हेटीरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक भी हैं और सेप्रोफिटिक भी हैं. नेक्स्ट है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम प्रोटोजोअन्स. दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बट दे लैक सेल वॉल एंड दे ऑल आर हेटीरोट्रॉफिक. एंड मोस्टली ये क्या हैं, सारे पैरासिटिक हैं. दे कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेज टू दी ह्यूमन बींग्स. नाउ दिस एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स: सार्कोडीन्स, ciliates, flagellates and sporozoans. So first we will discuss about flagellates, which are also known by the name zooflagellata. And zooflagellata, they have flagella as the mode of their locomotion, and many zooflagellates, they live within the body of animals, so we can say these are parasites and they causes a number of diseases to human beings. जिसमें एक एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा गैम्बेसी. दिस प्रोटोजोआ, इट कॉजेज अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस, और टेस्टस फ्लाई जो है दैट इज़ द वेक्टर जो कि इस बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करती है. सिम्टम्स जो हैं वो इस डिज़ीज़ के फीवर है, हेडेक है, पेन इन दी जॉइंट्स, फॉलोड बाई पैरासाइट्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिसके कारण कन्फ्यूजन्स, कोऑर्डिनेशन और अनकंट्रोल्ड स्लीपीनेस हो जाती है, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो देन दी होस्ट में ऑल्सो डाई. तो इस देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाए गए हैं जो ब्लड स्मीयर लिया गया है. ब्लड स्मीयर में ये जो पर्पल कलर के शो हो रहे हैं, दीज आर दी ट्रिपैनोसोमा, और इनमें देखो बहुत क्लियर जो है फ्लैजिला नज़र आ रहे हैं, एंड विद दिस फ्लैजिला दे शो व्हाट, लोकोमोशन. नेक्स्ट ग्रुप जो है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इसमें आता है दैट इज़ जियार्डिया. जियार्डिया जो है इट कॉजेज अ डिज़ीज़ कॉल्ड जियार्डियासिस, जो कि कंटामिनेटेड वाटर पीने से होती है, और इसमें सीवियर डायरिया या वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि जियार्डिया जो है वो मेनली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे जाके अटैक करता है. नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज मोड ऑफ लोकोमोशन, and it is also having contractile vacuole in its cytoplasm for osmoregulation, and also food vacuoles for digesting the food which the amoeba is ingesting through its pseudopodia. So sarcodine में example है amoeba का. नेक्स्ट ग्रुप जो है बच्चों दैट इज स्पोरोजोन्स. जितने भी स्पोरोजोन्स हैं दे ऑल आर पैरासिटिक, और वो हमारे ब्लड बॉडी फ्लूइड्स स्पेशली जो ब्लड है उस पर फीड करते हैं. रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें थ्रू स्पोर्स हो रहा है, एंड दे आर ईजिली पास्ड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, और मोस्टली टिक्स, मॉस्किटोज़ जो हैं ये वेक्टर्स हैं जो कि इस डिज़ीज़ को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड करते हैं. इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का, एंड दिस प्लाज्मोडियम एज यू ऑल नो इट कॉजेज मलेरिया. प्लाज्मोडियम जो है दैट इज़ अ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, और इसके 2 होस्ट हैं बच्चों. वन इज़ द ह्यूमन बींग एंड द अदर इज़ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. सो जो मॉस्किटो है दैट इज़ द प्राइमरी होस्ट, बिकॉज मॉस्किटो में इसका जो सेक्सुअल फेज़ है वो कंप्लीट होता है, वेर एज वी ह्यूमन बींग्स आर दी सेकेंडरी होस्ट, बिकॉज हमारे अंदर ये अपना ए सेक्शुअल फेज़ जो है वो कंप्लीट करती है, एंड हमारे अंदर ही ये डिज़ीज़ कॉज करती है मलेरिया. हमारे अंदर जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल 2 सेल्स में कंप्लीट होती है. इनिशियल फेज़ इसका स्टार्ट होता है प्लाज्मोडियम का इन द लीवर सेल्स, and then it moves to the RBC or the red blood cells. Mostly ये जो disease है that is found in the Africa,
and every year about 300 to 500 मिलियन केसेस जो हैं मलेरिया के होते हैं, जिसमें से 1.5 to 2.7 मिलियन डेथ्स दे आर अकरिंग एवरी ईयर। सिम्टम्स जो हैं इस डिज़ीज़ के फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। और ये इसकी जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ कंप्लीटेड बोथ इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन दी मॉस्किटो। सो ये ब्लड स्मीयर दिखाया गया है, और ब्लड स्मीयर में जो आरबीसी में इसकी क्योंकि लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है, तो आरबीसी में इसकी कई स्टेजेस को देख के जो है इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है दैट अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और नॉट। तो this is the vector which is the female anopheles mosquito, and this female anopheles mosquito ये इस बीमारी को स्प्रेड करती है from one person to the another person। now the last group जो है इसके अंदर वो ciliates हैं। ciliates में जो मोड है लोकोमोशन का दैट इज़ सीलिया, और इसमें एग्जाम्पल आता है बच्चों पैरामीशियम का। पैरामीशियम की बॉडी पे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज सीलिया, जिसकी हेल्प से पैरामीशिया मूव करता है। और इसमें जो है गलट प्रेजेंट है जो कि विच हेल्प्स इन होल्डिंग दी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है इनके अंदर टू डाइजेस्ट दी फूड मटेरियल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर पानी और सॉल्ट का बैलेंस बना के रखना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो इनकी बॉडी में वाटर और सॉल्ट बैलेंस को बनाने में हेल्प करते हैं। और एक और ख़ास बात है कि इनमें न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि इनमें दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। वन इज़ द मैक्रो न्यूक्लियस लार्ज इन साइज, एंड द अदर इज़ द माइक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो इनकी वेजिटेटिव एक्टिविटीज़, मतलब विद इन द सेल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है इट प्लेज अ रोल एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। पैरामीशिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल एज वेल एज बाय सेक्सुअल मीन्स। एसेक्सुअल मीन्स इसमें बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन मीन्स व्हेन अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 cells। तो इसमें भी बाइनरी फिजन जो है वो प्रेजेंट है, स्पेशली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन प्रेजेंट होता है। ट्रांसवर्सली ये डिवाइड करती है अपनी बॉडी को इनटू 2 डॉटर सेल्स। और सेक्सुअली इसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। कंजुगेशन के टाइम दो पैरामीशिया जो हैं दे आर यूनाइटेड विद वन अनदर, और उनमें एक ट्यूब फॉर्म होती है विच इज़ नोन एज कंजुगेशन ट्यूब। और इस ट्यूब से जो माइक्रो न्यूक्लियस है दैट इज़ shifted from one paramecia to another paramecia. So this was all about the kingdom Protista. Next we will start the next kingdom which is the kingdom Fungi. Till then students, thank you.